Hello, very warm welcome to my channel. Today we will start problem number 6, partnership final account. Already we have finished 5 problems. Let's start. This is the problem in front of you. Archana and Prerna are sharing profit and loss 2 is to 1. See here 2 is to 1 we have to highlight it with the help of trial balance. This is a trial balance. We have to post it in respective account. These are the adjustment. So we'll start. There is a no hidden adjustment. If you read, there is a no hidden adjustment. And here 7 adjustments are given. Posting has a 1 effect and adjustment has a 2 effect. So let's start. दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस वन इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हो या इसमें एक में ही आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट. सो फर्स्ट आइटम कम्स स्टॉक that 1st April 2018 and the trial balance is 31st March 2019. So this is the opening stock. Okay, so opening stock we have to write here. Then wages, see here, put a tick mark because there is an adjustment. So 2 wages. After that, heating and lighting. This also comes profit and trading account. Then we'll see the sales return. So we have written here sales return minus from the sales. I guess this is a purchase. So purchase. So we finish all debit side. Only sales return comes credit side because we have to minus this 400 from the sales. So as I told you, opposite minus करना है हमेशा. अगर डेबिट में दिया है रिटर्न तो माइनस फ्रॉम द सेल्स, अगर क्रेडिट में दिया है रिटर्न तो माइनस फ्रॉम द परचेस. ओके, सो दिस इज डन. नाउ विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करो. कहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? यस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. So write electricity charges, no adjustment. Sorry, there is adjustment. Next, yes, it comes trade expenses. Directly outer column we have to write outer column, no adjustment. So we'll write profit and loss. Then bad dates, of course, bad dates we have to write. Then next one, purchase. Okay, we'll finish this one. Profit and loss we finish. Now we'll move to the here credit side. See here, credit side what comes? Yes, purchase return. So minus purchase return. Now we get the answer because ये purchase तो हमने already लिखा है डेबिट साइड का, ये वाला purchase already लिखा है. ओके, फिर उसमें से हमने purchase return माइनस किया है. देन और कोई ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम? यस, सेल्स. सो सेल्स वी हैव टू माइनस. देन इंटरेस्ट. ओके, दिस ऑल वी फिनिश. आई होप आपको समझ में आया है. पोस्टिंग इज वेरी इजी. नाउ विल मूव टू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट यहाँ पे जहां जहां पे हमने लिखा है सब हमें करना है. सी हियर, दिस इज ऑल डन. अब आपको पता है इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. दिस ऑल विल कम्स. ठीक है, एंड दिस वन इज ड्रॉइंग माइनस फ्रॉम द कैपिटल. तो ये पहले ही लिख कर रखो कैपिटल. ठीक है, so capital Archana, Prerna and minus drawing. When we'll get capital, we'll put here. Okay, this is done. Then next one is a capital. See here, अब credit side हम complete करते credit side. Then or yes, others loan. This is also liability. Then reserve fund 1000. देखो अगर आपको याद रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये रिजर्व फंड हम क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. बिकॉज तब क्या होता था? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता था. यहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं है, ना कोई एडमिट हो रहा है, ना रिटायर हो रहा है, ना फर्म डिसॉल्व हो रही है. तो जब तक ये 3 रीजन नहीं होते हैं हम रिजर्व फंड हमारा क्या करेंगे? लायबिलिटी में ही लिखेंगे. ओके, कोई भी फंड हो, एक ट्रिक देती हूँ, कोई भी फंड हो, जनरल फंड हो, रिजर्व फंड हो, प्रोविडेंट फंड हो, फंड अगर नाम आता है तो दैट विल गो लायबिलिटी साइड. ओके, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स वी हैव. देन बिल्स पेबल वी हैव. आई होप समझ में आ गया आपके. ठीक है, सो पोस्टिंग इज डन. 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए,
खुद पोस्टिंग कीजिए और फिर चेक कीजिए, ठीक है। अब आपको तो आया होगा ऑलमोस्ट समझ में पोस्टिंग कैसे करते हैं। नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट एज यूजुअल दे हैव गिवन 31st March 19 स्टॉक, 31st March 19, ठीक है। सो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग हम डेबिट में लिखते हैं तो क्लोजिंग हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट विच अमाउंट वी आर सपोज टू टेक, 12,000 एज अ कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। सो वी हैव टू टेक विच एवर इज लेस। हमें नहीं देखना है कि वो कॉस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है। ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, कॉस्टिंग करने के बाद वैल्यू करने के बाद उसकी वैल्यू 12,000 आई, लेकिन यही स्टॉक की अगर मार्केट में वैल्यू हमने की तो उसकी प्राइस आ रही है 17,000। समझ में आया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस हो, हमें देखना है इसमें से छोटी अमाउंट कौन सी है। सो ऑफ कोर्स 12,000 इज स्मॉलर, सो विच एवर इज लेस दैट वी हैव टू टेक, so we will take 12,000. So buy closing stock 12,000. Okay. Now second effect, every adjustment has a true effect. So we'll write here 12,000. Now the next is our customer. बार बार मैं बोल रही हूँ आपको, कस्टमर का मतलब होता है डेटर्स. So this adjustment is related with the debtors. Okay. So customer Mr. Shaker failed to pay his due 800. देखो कितना ट्विस्ट करके दिया है, यही सिंपल दिया होता बैड डेट्स 800 तो हमने कितना आसानी से किया होता। बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, सेंटेंस चेंज किया है। कस्टमर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू 800, दैट मीन्स बैड डेट्स दे गॉट 800, सो माइनस बैड डेट्स। डन। सो आगे और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, आरडीडी डिस्काउंट ऑन डेटर्स नथिंग इज गिवन, सो विल डायरेक्टली राइट आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स है, सो पुराने वाले बैड डेट्स में आइदर आप ऐड करो, ठीक है, या अलग से लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो अलग से लिखा तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, या आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ लिखना जरूरी है ये 800। द नेक्स्ट वन इज 1/8 ऑफ पेटेंट टू बी राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। राइट ऑफ मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। पेटेंट, पेटेंट इज अ असेट। जैसे देखो हमारे इंडिया का बासमती राइस पेटेंट है, तो वो हमारी असेट है ना। हम जिस जिस को बासमती राइस सेल करेंगे तो पेटेंट के हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। सो दिस विल गो असेट साइड। देखो यहाँ पे हमने पेटेंट लिखा ही है ऑलरेडी पोस्टिंग के वक्त। 1/8 क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है, तो 1/8 आसानी से करो, कितना आएगा 250, माइनस करो, सो 1750। ओके, इसका हमें क्या करना है 1/8, so 250 answer comes 1750. So write off matlab depreciation, as usual second effect will go to write off patent 250, yeah, you can write depreciation patent 250. Done. So this is also done. Now this is a new one. Now pay attention, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। Okay, part of furniture, see here, part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 18। जब भी डेट देते हो तो समझना है कि यहाँ पे कुछ तो हमको कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 1st अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 6 मंथ्स, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। जुलाई मीन्स 9 मंथ्स, जनवरी मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। सो अक्टूबर मतलब 6 मंथ्स। सो पार्ट ऑफ द फर्नीचर, कितना टोटल फर्नीचर था 13,000, उसका पार्ट क्या किया है, परचेस किया है 2018 में। सी कैलकुलेशन हैव गिवन 13,000 का पूरा फर्नीचर है, ठीक है। अब एज्यूम करो टेबल होगा, चेयर होगा, सोफा होगा, तो पूरी सबका फर्नीचर का वैल्यू कितना है 13,000। उसमें से पार्ट ऑफ द फर्नीचर 5,000 उन्होंने कब परचेस किया, अक्टूबर में। तो 13,000 में से 5,000 माइनस करो, बिकॉज दिस इज अ न्यू फर्नीचर, हमने जस्ट अभी परचेस किया है, ठीक है। और बचा हुआ ओल्ड फर्नीचर। ओके, सो 5,000 हमने कब परचेस किया है, अक्टूबर में, मतलब 6 मंथ। तो इस पे डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे दिया है 5%, ठीक है। सो इस पे हम डेप्रिसिएशन कितना निकालेंगे 5%, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे दिया है अक्टूबर, कुछ डेट नहीं देते तो इस पे हम 12 मंथ्स का निकालते थे, ठीक है। बट हियर दे हैव गिवन कि इसमें से थोड़ा सा जो नया फर्नीचर है वो अक्टूबर में परचेस किया है, तो 5,000 का 6 मंथ्स 5% से इट कम्स 125,
और 8000 तो पुराना है, ओल्ड है, यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या है ये, ओल्ड है, तो पूरा 12 मंथ्स हमने यूज किया 5% से, सो इट कम्स 400। तो ऐसा पूरा डेप्रिसिएशन 13,000 पे कितना हो गया, 525 हो गया। व्हाट, इसका और इसका टोटल करना है, ठीक है। तो हमको ये बाइफरकेट करके बताना है वर्किंग नोट में। अगर मार्क्स है तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो आप ऐसे ही कहीं तो रफ में खुद कैलकुलेट करो और आंसर लिखो। ओके, सो सी हियर डेप्रिसिएशन 525। देन आया समझ में आपको? यहाँ पे 525 कैसे आए, डायरेक्ट 13,000 पे 5% मत निकालो। अगर डायरेक्ट 13,000 पे 5% निकालोगे तो इट कम 625, ठीक है। लेकिन हमें ये उन्होंने एडजस्टमेंट दी है, सो ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना है। पॉज करके फिर से एक बार समझ लो। ओके, सो सेकेंड इफेक्ट विल गो। ओके, फिर उसके पहले हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन कर ही लेते हैं एक साथ ही, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, इसका तो 10% दिया है, वेरी सिंपल, बिल्डिंग का 10%, सो 22 का 10%। नाउ बोथ विल गो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, 525 2200। okay, very simple adjustment. Now we'll see outstanding. Yes, it's a very my favorite adjustment. Outstanding है, बाहर खड़े हो तो चलो अंदर बुलाओ, so we have to add wages। इसका मतलब 300 अभी भी पे करने बाकी है, तो पूरे साल का वेजेस का खर्चा कितना है, 1250। और यही हम आउटर कॉलम में लिखते, 1 ईयर का हम पूरा एक्सपेंसेस एंड इनकम लिखते हैं, ठीक है। सो वी एड इट। देन इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी हमें बाकी है, सो अगेन एड इट। सो अब देखो 2 मिनट ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज अ डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में ऐड हुआ है, डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस ऐड हुआ है, तो टेंशन भी बढ़ा ना, तो टेंशन मतलब लायबिलिटी, सो विल गो लायबिलिटी साइड। आया समझ में? यही क्रेडिट साइड इनमें ऐड होता तो क्या होता, इनकम ऐड होता, तो नो टेंशन, तो फिर किधर जाता, असेट में, ठीक है। ये एक दो ट्रिक आप याद रखिए, वेरी सिंपल। फाइनली डन। नाउ लास्ट वन, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो अब कौन सा कैपिटल, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक दिस कैपिटल 40,000 एंड 20,000, ठीक है। सो 3%, तो 40,000 पे 3% एंड 20,000 पे 3%, वेरी सिंपल। सी 40, इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 40,000 पे 3%, कैसे लिखते हैं हम लोग, 40,000, सी 40,000 पे 3%, तो 3 एंड परसेंट है इसलिए अपॉन 100, ठीक है। कैलकुलेशन इजी है, फिर भी कोई कोई स्टूडेंट ने कमेंट किया कि कैलकुलेशन भी बताओ, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ये 2 जीरो गए तो 400 इंटू 3 इट कम्स 1200। सेम अबाउट 20,000, 20,000 का भी 3% इट कम्स 600। एंड इंटरेस्ट है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, सो वी हैव टू ऐड। लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन फर्म को पे करना है, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, सो विल राइट डेबिट साइड 1200, 1600, it will become 1800. Done? So I hope you understood very well. We finish, लेकिन फिनिश करने से पहले एक बार देखो कोई हिडन एडजस्टमेंट है, बिकॉज कभी कभी हिडन एडजस्टमेंट होती है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। सो ओवर, नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी आपको, अब अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। क्रेडिट की टोटल माइनस डेबिट, वी गेट जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, वी हैव टू ट्रांसफर क्रेडिट साइड, सी बराबर इनकम आया ना हमें, gross profit is a income, so profit and loss is a nominal account, debit the expenses, credit the income। तो finally हमने यहाँ ट्रांसफर किया है, so now close it, we'll get net profit 825, बहुत ही कम प्रॉफिट मिला है। अब ये प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, so ऐड करो, see here, so we get the answer। कैसे करोगे, उनका रेशियो क्या है, मैंने पहले ही हाईलाइट किया है, 2:1। and one more thing, if ratio is not given, if ratio is silent, that means we have to take 1:1, but यहाँ पे उन्होंने दिया है 2:1, and thus we are balance sheet get tally। done? आई होप आपको समझ में आया है। सो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों से शेयर जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।